students, today we are going to start a new chapter, chapter 2, beta and gamma function. And introduction we are doing today, known as a beta function. Firstly we will do a beta function, next we will do a gamma function. What beta function? Beta function is that integration 0 to 1 x raised power m minus 1 minus x raised power n minus 1 dx is called the beta function, and where m is greater than 0 is n is greater than 0 and its notation is beta of mn. Okay, clear? Now I will teach you by some examples more. Like example number 1 more, I'll take an example that 0 to 1 integration x to 5 1 minus x raised power 3 and thus this is a beta function. अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमें क्या नज़र आएगा कि यहाँ पर m का काम, इसको कैसे लिखेंगे हम? We can write it as 6 minus 1 and this we can write it as 3 को लिख सकते हैं 4 minus 1 and dx, and here m and n greater than 0, 6 and 4 these are greater than 0 also, greater than 0. So its beta function is beta of 6 comma 4 because this is m and this is n. Clear? Now we will do one more example. You can you can see this from your book also, 2 examples more. Next the first property of the beta function is that beta of m comma n, the first property is beta of m comma n is equal to beta of n comma m. This is the first property which is very important, plays a role in your chapter. This is very most important property you can say, and it's very easy also. We will use one property of class 12th in this property. So now we will do what we have to prove that the both are equal. So now we will use what the value of beta of mn function. See, beta of mn function, beta of mn function क्या होता है हमारे पास? 0 to 1 x raised power m minus 1 minus x raised power n minus 1 dx. This is beta of mn, and we have to show that the beta of n comma n is also same. What property we will use? We will use that property we have used in class in 12th. Whenever 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. So this property we will use in above equation. This equation is known as 1. So you can write it here कि use equation number 2. This you can say is equation number 2. Equation number 2 in equation number 1. हाँ जी, तो इसमें यूज करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बना बीटा ऑफ m कोमा n इंटीग्रेशन 0 to 1 x की जगह हम लोग क्या रखना है? जहाँ जहाँ x था वहाँ पर a माइनस एक्स, मतलब a जो लिमिट में दिया हुआ है इसको, जो ये लिमिट में दिया ये, और x को क्या करना है? माइनस, मतलब इसमें x में a माइनस एक्स जो भी यहाँ लिखा हुआ है उससे माइनस करना है. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स. ठीक है, m माइनस 1. अब यहाँ पर भी करके देखते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी. 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है हमें? x की जगह रखना है हमें 1 माइनस एक्स. जैसे x की जगह रखा है a माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक जगह कौन है? 1, तो क्या रखेंगे x की जगह 1 माइनस एक्स. यहाँ पर भी x है 1 माइनस एक्स n माइनस 1 dx. तो बीटा ऑफ mn फंक्शन इज इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स m माइनस 1. इसको खोलोगे जब 1 माइनस 1 प्लस एक्स n माइनस 1 dx. 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा. सो बचेगा क्या? 0 to 1 हमारे पास क्या बचेगा? 0 to 1 ये बचेगा 1 माइनस एक्स m माइनस 1 एक्स रेज पावर n माइनस 1 dx. अब कंपेयर करें अगर हम इसको इससे,
अगर हम ये वाली चीज़ वहाँ से कंपेयर करें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि इसकी जगह पर तो अगर 1 माइनस एक्स की पावर है वो कितनी है, m है, लेकिन यहाँ कितनी है, n है, और x की पावर वहाँ m होती है, यहाँ पर x की पावर n दे रखी है, तो इंटरचेंज कर रहे हैं m और n, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अगर वो बीटा mn होता तो ये बीटा क्या होगा, nm होगा, यही होगा। और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि बीटा ऑफ m कोमा n इज इक्वल टू बीटा ऑफ n कोमा n। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज प्रूव्ड। सो नाउ वी विल डू अ प्रॉपर्टी नंबर 2। नाउ वी कंटिन्यू आवर क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 2। दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 2nd। So this is the another form of the beta function. This is one beta function property and this is one more beta function. What it is, 0 to infinity x raised power m minus 1 divided by 1 plus x raised power m plus n। और कह रहा है कि 0 to infinity अगर हम m की जगह n लिख दें, रिप्लेस कर दे तो कोई इशू नहीं रहेगा। वही चीज़ अब पढ़ चुके हैं, बीटा ऑफ एम एन और एन एम एक ही बात होती है कि अगर हम उसको चेंज कर दे तो कोई इफेक्ट हमारे पे नहीं पड़ता। तो करते हैं इस वाली फॉर्म को हम प्रूफ। इसके लिए हमें पहले अनदर फॉर्म उठानी पड़ेगी, यही वाली, इसी के डेरिवेशन से हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। आपको यहाँ पर ये स्टेप रिमाइंडर रखना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी के सॉल्यूशन में कि हम x को यहाँ पर पुट करने वाले हैं t डिवाइड बाय 1 प्लस टी। क्लियर? इस प्रॉपर्टी में हम लोग पुट करेंगे जो हमारे पास प्रॉपर्टी दे रखी है बीटा फंक्शन, इसको मान लो चाहे इक्वेशन नंबर 1, इसी में हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या है, x इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई टी प्लस 1। अगर हम dx निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे dx की जरूरत पड़ेगी, dx क्या आएगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इधर होगा dx, इधर dt भी चलेगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। तो 1 प्लस टी माइनस टी, टी से टी कैंसिल, नीचे बचा 1 प्लस टी का स्क्वायर, कितना बचा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास dx और साथ में dt भी चलेगा। आगे हम प्रूफ करते हैं, लिमिट भी देख लेते हैं एक बार क्या है। अगर हमारी लिमिट 0 है, अगर हमारे पास x पीछे 0 है तो हमारे पास t भी क्या रहेगा, 0, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बार इसको सॉल्व कर लो, कैसे निकालना है हम लोगों ने पुट करने का मेथड। देखिए, अगर हम x की यहाँ से आया ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये t हुआ t है, ये यहाँ से हम t की वैल्यू एक्चुअली निकालना चाह रहे हैं कि t क्या आएगा, तो x प्लस एक्स टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ से t लिया हमने कॉमन, t को उधर ले गए, t लिया हमने कॉमन, ये बचा 1 माइनस एक्स, तो x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पर हम x को पुट करते हैं 0, तो 0 0, अगर ऊपर ही 0 है, व्हेन x इज 0 देन t इज अगेन 0, व्हेन x इज 1 दिस इम्प्लाइज t इज इन्फिनिटी। हाउ, व्हेन x इज 1, सी अगर हम x को 1 पुट करने वाले हैं, हम रफली में देखते हैं यहाँ पर, अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो 1 यहाँ पर पुट करेंगे, 1 में से 1 गया 0, तो नीचे बच रहा है अगर 0 तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो हमारे पास एक कुल मिला के पुट, अगर फर्स्ट को देखें हम क्या बनता है, पुट ऑल द वैल्यूज इन, put all the values in equation number which, equation number 1। so क्या मिलता है हमारे पास, बीटा ऑफ एम एन फंक्शन हमारे पास मिलेगा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट चेंज हो चुकी है। x क्या है हमारे पास, t डिवाइड बाय 1 प्लस टी रेज पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर, हमने वैल्यू निकाली है ना, ये इसीलिए निकाल, x की खैर है हमारे पास है ना, t की तो हमने लिमिट पुट करने के लिए निकाली है, तो x की वैल्यू यहाँ पर t डिवाइड बाय 1 प्लस टी की पावर कितनी है, n माइनस 1। हाँ, dx की वैल्यू बताइए, ये dx पड़ा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर dt, ऐसा वैल्यू पुट कर दी है। अब बताइए यहाँ पर क्या बचा, बीटा ऑफ एम एन फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, पावर्स को करते हैं इकट्ठा, इसको कितनी बची, t की पावर m माइनस 1, नीचे बचा 1 प्लस टी की पावर m माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो नीचे बचेगा 1 प्लस टी माइनस टी, हट गया ये n माइनस 1 और 1 डिवाइड बाय 1 को छोड़ो, मतलब नीचे आ जाएगी 1 प्लस टी का
स्क्वायर और dt। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हमें पावर करनी कंबाइन 0 से इन्फिनिटी। ये कितना बचेगा? ऊपर बचा t की पावर m-1, नीचे t की पावर इकट्ठी करते हैं। एक तो 1 + t ये रहा, ठीक है, इसकी एक पावर है m-1। ये देखो 1 + t, इसकी पावर है n-1, तो बेस m पावर ऐड होते हैं। एक और भी है यहाँ पर 1 + t की पावर 2। तो कितना बचेगा हमारे पास? ये 0 से इन्फिनिटी t रेस पावर m-1, नीचे 1 + t की पावर, देखो -1 -1 -2 एंड -2 + 2 ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 0, खत्म हो जाएगा। तो खाली m + n बचेगा और साथ में बचेगा dt। इतना क्लियर हुआ अभी तक? अब देखो प्रूफ क्या करना है। प्रूफ थोड़ा थोड़ा सिमिलर आ रहा है कि अगर हम देखें x यहाँ t, यहाँ पे x यहाँ t, और थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है। स्टूडेंट्स हमने क्लास +2 में पढ़ा हुआ है कि अगर हम चेंज करना चाहते हैं, देखो यहाँ पर x है यहाँ t है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। x 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पर x लिख सकते हैं। हमने +2 में पढ़ रखा है प्रॉपर्टी 1 + x रेस पावर m + n और dx। x को हमने किसी चेंज, t को किसी चेंज कर दिया x से। ये प्रॉपर्टी हमने +2 में पढ़ी है कि हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं इन इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ जी, ये चीज़ आ गई है, यही आपको प्रूफ करनी थी। साथ में ये चीज़ भी प्रूफ करनी, तो सीधा कह दो कि दिस इज द बीटा ऑफ mn फंक्शन, बीटा ऑफ mn फंक्शन, एंड बीटा ऑफ mn फंक्शन इज इक्वल टू बीटा ऑफ nm फंक्शन। अगर हम यहाँ 0 to इन्फिनिटी अगर x की जगह रख दें n-1 डिवाइड बाय 1 + x रेस पावर n + m dx, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बीटा ऑफ mn फंक्शन इज इक्वल टू बीटा ऑफ nm फंक्शन। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़ा है कि ये दोनों क्या होती है? इक्वल। तो ये चीज़ इसके इक्वल ही है, तो ये दोनों भी क्या होंगी? इक्वल। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी 2 होती है खत्म। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। We are continue with our third property, which is the last property of the exercise this. Now we proceed the example after that. Third property is that show that the beta of mn function is beta of m-1 factorial n-1 factorial and upon में m + n-1 का factorial, where if beta of m and n are positive integer। देखो एक हमने ये पढ़ी बीटा ऑफ mn क्या 0 to 1 x रेस पावर m-1 और 1 - x रेस पावर n-1 dx। पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी। देखो ये प्रॉपर्टी क्यों रिवाइज करा रहे हैं बच्चे कि अगर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा प्रूफ करना नहीं आता। कॉलेज एग्जाम्स में हम लोगों के पास प्रूफ करना आता है, लेकिन जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रिवीजन या प्रिपरेशन करते हैं, जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें प्रूफ नहीं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी स्टेटमेंट है वो याद होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको ये बार बार याद करवा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है बीटा ऑफ mn फंक्शन। क्या बता रहे हैं? बीटा ऑफ mn फंक्शन क्या होता है? m-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड में दोनों का प्लस करके उसका -1 करेंगे, उसका फैक्टोरियल। एक प्रॉपर्टी हमने पीछे भी और पढ़ी है, अगर रिवाइज है तो बता सकते हैं। क्या पढ़ी हमने? अभी बीटा ऑफ mn फंक्शन पढ़ा था, याद हो, 0 to इन्फिनिटी क्या ऊपर x रेस पावर क्या x रेस पावर m-1 डिवाइड बाय 1 + x रेस पावर m + n dx। तो आपको ये सभी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तीनों की तीनों आपको याद होनी चाहिए, और हम इसको यूज़ भी करेंगे अपने क्वेश्चंस में, तो तीनों ये याद होनी चाहिए। थर्ड का हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ हमें करना पड़ेगा फर्स्ट वाली का। सेकंड को यूज़ करने के लिए भी फर्स्ट का हमने यूज़ किया है, और थर्ड को यूज़ करने के लिए भी हम फर्स्ट का यूज़ करेंगे। ये जर्नल है हमारे पास, तो करते हैं इसको शुरू। हाँ जी, सोल्यूशन। हाँ जी, क्या है? 0 to 1 बीटा ऑफ mn फंक्शन है हमारे पास x रेस पावर m-1 1 - x रेस पावर n-1 dx। ठीक है, हम इंटीग्रेशन करेंगे। लेट स्टार्ट एन इंटीग्रेशन विद दिस। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन। रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाली का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होएगा? पावर में 1 हमारे पास क्या होता है? ऐड, तो n बचेगी, नीचे भी क्या बचेगा? n, और अंदर वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ पर -1, और इस पे लगाएंगे हम लिमिट 0 to 1। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज, सेकंड वाली का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले टर्म का होगा यहाँ पे डेरिवेटिव m-1 यहाँ आएगा, इसके आगे x और पावर 1 हो जाएगी कम। m-1 में से कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी? -2। इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं, डेरिवेटिव माइनस,
उसके बाद सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन वो सॉल्व किया हुआ ये लिख देते हैं यहाँ से 1 माइनस एक्स रेस पावर एन डिवाइड बाय माइनस का एन डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पढ़ते हैं लिमिट पुट। अगर हम 1 पुट करते हैं, देखो 1 यहाँ रखा गया तो 1 में से 1 गया 0, सारा 0। अगर हम 0 यहाँ रखते हैं, क्योंकि रखने तो पड़ेगा ही, यहाँ पे भी 1 रखेंगे और यहाँ पे 1, इस 1 यहाँ रखने से 0 और 0 यहाँ रखोगे और यहाँ भी रखोगे तो इसके कारण यहाँ से 0, तो ये सारा तो हो जाएगा 0 माइनस। अब इधर से जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट टर्म का मतलब है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है, तो एक तो ये है m-1 और दूसरी है हमारे पास माइनस का n, तो बाहर प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या बचेगा, x रेस पावर m-2 और 1 माइनस एक्स रेस पावर n dx। इतना क्लियर हो चुका है। आगे हम क्या करने वाले हैं, इसको करेंगे ब्रेक। m-1 n 0 to 1, इसको पावर को ब्रेक कर लीजिए। m-1 मैंने पावर इसकी अलग रख ली है और एक सिंगल पावर हम इसकी क्या रख लेते हैं, अलग। इसकी छोड़ो, आप इसकी रख लीजिए। 1 माइनस एक्स की पावर n-1 मैंने एक अलग रख ली और 1 माइनस एक्स मैंने क्या रख ली, एक अलग। अभी बताते हैं क्यों। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 के साथ और फिर इसकी मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करते हैं स्टार्ट। देखो मैंने जानबूझ के इसको ब्रेक किया, n को n-1 और 1 में। क्यों, क्योंकि मुझे 1 माइनस एक्स की पावर n-1 बीटा फंक्शन के लिए चाहिए होती है, इसीलिए मैंने इसको ब्रेक करा, क्योंकि मुझे इसकी पावर n-1 चाहिए थी। और इसको करने के बाद जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली यही चीज़ बन जाएगी। करते हैं इसको, यही कर देती हूँ मैं। m-1 n 0 to 1 एक्स रेस पावर m-2। देखो अगर मैं इस सारे की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो ऐसे का ऐसी, और फिर इस सारे की मल्टीप्लाई x से भी करेंगे हम लोग, ये बाहर वाला लिख देते हैं, माइनस m-1 डिवाइड बाय n इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेस पावर m-2 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू एक्स ऐड करेंगे तो 1 यहाँ। समझ में आया क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। ये आपको चीज़ दिख रही होगी, इस सारी की मल्टीप्लाई 1 के साथ की है और इस सारे की मल्टीप्लाई x के साथ किया है। अब इस सारे की मल्टीप्लाई पहले 1 से करेंगे तो मैंने डिटो सेम का सेम उतार दिया यहाँ तक। फिर जब 1 से करने की बारी आई x से, तो x की पावर 1 से करने की बारी आई तो मैंने सारा सेम का सेम लिखा, बस इसके साथ पावर एक 1 ऐड कर दी, क्योंकि बेस सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो m-2 थी, पावर यहाँ पे 1 है, तो कितनी हो जाएगी m-2 + 1, तो हमने ये लिख दिया। आगे देखते हैं बचा क्या है हमारे पास। हाँ जी, इधर बचा हमारे पास m-1 डिवाइड बाय n 0 to 1 एक्स रेस पावर m-2 1 माइनस एक्स रेस पावर n-1 माइनस m-1 डिवाइड बाय n 0 to 1। हाँ जी, कितनी पावर होगी यहाँ से, -2 + 1 इट्स -1। यही चाह रही थी मैं कि x की पावर m-1 आ जाए, और x1 माइनस x की पावर कितनी है, n-1 dx। ये तो आपको लग ही रहा होगा कि एक तरह से किसकी फॉर्म आ रही है, बीटा फंक्शन की फॉर्म आ रही है। तो इसको तो लिख दो बीटा ऑफ m n। इसको क्या लिख सकते हैं खुद, अगर इसको हम इमेजिन करें m-n, हाँ जी, इसको अगर इमेजिन करें तो हमारे पास ये क्या है, 1 माइनस एक्स की जगह यही सेम चीज़ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m-1 -1 लिख सकते हैं। तो -1 तो उसको अलग रखने दो, मतलब m की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, m-1 से, तो हम ये लिख देंगे बीटा की जगह क्या लिखेंगे, बीटा ऑफ m-1, n। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर इक्वल में इधर लेफ्ट में चल रहा था हमारे पास बीटा ऑफ m n फंक्शन, ये देखिए सारा लेफ्ट में चल रहा है हमारे पास बीटा ऑफ m n फंक्शन, ये चल रहा है हमारे पास। अब ये भी बीटा ऑफ m n फंक्शन है, ये माइनस का जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एक तो ये रहा बीटा ऑफ m n फंक्शन, प्लस में इधर से ये आ गया m-n, ये m है, डिवाइड में n बीटा ऑफ m n फंक्शन, और इधर बचा ये m-n डिवाइड बाय n बीटा ऑफ m-1 इंटू n। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ बीटा ऑफ m n फंक्शन, तो बचता क्या है मेरे पास 1 + m-1 डिवाइड बाय n, और m-1 डिवाइड बाय n बीटा ऑफ m-1, n। एलसीएम जैसे ही आप लेंगे हाँ जी, बीटा ऑफ m, n
एलसीएम लेंगे n ऊपर, तो n प्लस एम माइनस वन डिवाइड बाय n इज इक्वल टू बीटा ऑफ m माइनस वन डिवाइड बाय n, बीटा ऑफ m माइनस वन कोमा n। ऐसे कैंसिल आउट हो सकता है, 1 n से n मल्टीप्लाई बाय वन नीचे चली जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, बीटा ऑफ m कोमा n बचेगा हमारे पास m माइनस वन, ये ऊपर नीचे चला जाएगा क्या, n प्लस m माइनस वन बीटा ऑफ m माइनस वन कोमा n। सो यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखो हमें निकालना क्या है, बीटा ऑफ एम एन फंक्शन की फॉर्म ये निकालनी है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा बीटा के फंक्शन में नहीं आना चाहिए, तो हमें इसकी वैल्यू को करना है फाइंड आउट, ये चीज़ फाइंड आउट। तो हमें बीटा ऑफ एम माइनस एन हमें क्या चाहिए, देखिए हमें फाइंड आउट करनी है बीटा ऑफ एम माइनस वन कोमा एन, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने कहा कि अगर ये चीज़ फाइंड करनी है तो क्यों ना आप, अगर बीटा ऑफ एम एन है मेरे पास, तो मैं अगर m की जगह सिर्फ रिप्लेस कर दूं m माइनस एन से, तो मुझे लगता है कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यही कहा कि मुझे चेंज करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, चेंजिंग m टू m माइनस वन इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि 1 इसको मान रखा तो 2 मैंने इसको मान लिया। ठीक है, उसमें करते हैं चेंज। क्या आएगा हमारे पास, बीटा ऑफ m की जगह m माइनस वन, तो m माइनस वन कोमा n, क्या बचेगा m की जगह m माइनस वन, तो m माइनस वन, एक माइनस ऑलरेडी है, नीचे n प्लस m माइनस वन, बीटा ऑफ m माइनस वन और n, क्या बचा, बीटा ऑफ m माइनस वन कोमा n इज इक्वल टू बीटा ऑफ m माइनस टू डिवाइड बाई n प्लस n माइनस टू, बीटा ऑफ m माइनस टू कोमा n, ये आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m माइनस वन कोमा n, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी वो वहाँ पुट करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं कि बीटा ऑफ m कोमा n क्या बचेगा। हाँ जी, लिख दीजिए कि यूजिंग, ये हमारे पास इसको थर्ड मान लिया, लिखो यूजिंग थर्ड इन सेकेंड, थर्ड का यूज करते हैं सेकेंड में, तो बीटा ऑफ m n फंक्शन में मिलेगा क्या, m माइनस वन डिवाइड बाई n प्लस m माइनस वन बीटा ऑफ एम एन, इसकी वैल्यू जो यूज़ की है ना हमने यहाँ से निकाली है वही डालिए, m माइनस टू, आगे m प्लस n माइनस टू, और इसकी वैल्यू ये चीज़ हमारे पास आएगी बीटा ऑफ m माइनस टू कोमा n, ये हमारे पास बीटा ऑफ m n की अभी वैल्यू है। फिर आप कहोगे फिर से हमें क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, अब हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे, हमारे स्टेप में क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे m को किससे, m माइनस टू से, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसी के अंदर अबव स्टेप के अंदर m की जगह क्या चेंज कर सकते हैं, m माइनस वन। अगर ऊपर वाले में चेंज करना तो m माइनस वन, नीचे में चेंज करना तो m माइनस टू, क्योंकि यहाँ पर मैं m माइनस वन करूँगी तो माइनस वन ऑलरेडी है, m माइनस टू हो जाएगा ना, m माइनस टू की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ करते तो m माइनस टू करना पड़ेगा। मतलब करना यही है कि कॉन्टिन्यू वे चलेगा। अगर हम पुट ऐसे इतना पुट तो नहीं कर सकते ना, तो लिख देंगे सिर्फ कि कॉन्टिन्यू पुट इन दिस वे। हमें एक वक्त ऐसा आएगा कि बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू जब चलते चलते, देखो पहले वहाँ क्या था m माइनस वन, फिर कितना आया m माइनस टू, ऐसे लगातार स्टेप करते करते, मतलब पहले 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, m माइनस फाइव, m माइनस सिक्स, m माइनस सेवन, m माइनस एट, ऐसे करते करते वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 1 कोमा n। 1 क्यों बचेगा, क्योंकि आपको बता रखा है कि जो बीटा एम एन होते हैं दोनों जीरो से क्या होते हैं बड़े, जीरो से बड़ा तो क्या होता है 1 ही आएगा, यहाँ पर लास्ट आखिर 1 तक ही पहुँच सकते हैं। तो बीटा ऑफ 1 कोमा n आ जाएगा क्या, चलते जाएंगे m माइनस वन आया, फिर m माइनस टू, अब टू सोन करते जाएंगे, तो हमारे पास एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, m की जगह m माइनस टू की जगह क्या बच जाएगा हमारे पास 1 बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास m प्लस n माइनस वन, यही वाली चीज़ जो हमने लिखी है, और m प्लस n माइनस टू। अब टू सोन करते करते n प्लस वन बच जाएगा, क्या बचेगा n प्लस वन बचता चला जाएगा। और फिर आओ
I am finding the value of b comma 1 comma n because I need this value, so that I can find out. तो बीटा 1 comma n निकाल लेंगे, तो बीटा m comma n क्या होता है वो बताइए पहले. 0 to 1 x रेज पावर 1 माइनस m 1 माइनस x रेज पावर n माइनस 1, यहाँ से लिखा हुआ है m माइनस 1 था, सॉरी, x रेज पावर m माइनस 1 dx. अब अगर मुझे 1 को मैं तो n की जगह किससे रिप्लेस करना है, 1 से, तो कर दीजिए. n कहाँ है, 1, यहाँ रखेंगे. 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पर n माइनस 1 dx. तो 0 to 1 देखो किसी की पावर 0 तो क्या होता है 1, तो बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx. तो ये क्या बचा हमारे पास, 0 to 1 इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगी, पावर 1 क्या हो जाएगी, ऐड n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो ये कट जाएगा, नीचे बचेगा n, लेकिन किसका, माइनस का. y माइनस का, बिकॉज इसका भी तो बचेगा ना, माइनस का x का डेरिवेटिव करोगे तो नीचे लिखा जाएगा. तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स की पावर n डिवाइड बाई माइनस n. तो वो हम यहाँ डाल लेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, यही डाल देती हूँ मैं वैल्यू. देखो मैंने कहा किया, यहीं पर ही वैल्यू डाल दी है. उसकी क्या वैल्यू है, ये यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 1 माइनस n की पावर, नीचे माइनस n था और ऊपर क्या था हमारे पास 1 माइनस n की पावर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या, n हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया. उसके बाद क्या करना है, ये हमारे को चीज़ मिल चुकी थी. अब हमने यहाँ पर लिमिट थी हमारे पास 0 to 1, वो भी तो पुट करनी है. लिमिट 0 to 1 भी डालनी थी यहाँ पर. तो अगर जब हम 1 डालेंगे, देखिए बच्चे 1 डालेंगे हम यहाँ पर, 1 में से 1 गया 0, तो पिछले पहला फैक्टर तो ख़त्म हो जाएगा. जब हम ये वाली वैल्यू अलग से सॉल्व करेंगे, जब हम इसको डालेंगे 1 डालेंगे, 1 में से 1 गया 0, पहले तो 0 माइनस, एक माइनस हो रहा है प्लस, नीचे n. हाँ जी, जब 0 डालोगे यहाँ पर तो किसकी जगह 0 डालोगे, x की जगह 0, यहाँ 0 डालोगे ना, 1 में से 0 गया 1, 1 की पावर n, 1 ही बचेगा. तो मतलब 1 बच रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है, 1 बाई n. तो हम यहाँ पर जो चीज़ लिखवाई है ना, भी आपको सब चीज़ें काट के जो सोल्व किया है, सीधा आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 बाई n. क्लियर हुआ ये चीज़ें. अब सॉल्व जो हमें प्रूफ करना था उस पर नज़र मारो, और जो यहाँ पर है इससे नज़र मारो. अब मैंने ये देखा कि मेरे पास ऊपर ये तो मिल गया 1 से लेकर m माइनस 1 फैक्टोरियल, m माइनस 1 तक, तो इसको बोलते हैं m माइनस 1 का फैक्टोरियल. 1 तक जाना चाहिए. ये m प्लस n से लेकर n तक है, मतलब इसमें कुछ कमी है, कुछ फैक्टर्स की. किसकी कमी है, इसमें फैक्टर कितने हैं, कम है, 1 से लेकर n माइनस 1 तक. देखो कैसे करके दिखाती हूँ. अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे, n माइनस 1 के फैक्टोरियल से, ऊपर भी और नीचे भी. इसको क्या लिखोगे, ये चीज़ क्या है, इसका मतलब है ये n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सोन 1, ये सारा कंप्लीट क्या बन गया, m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि वो तो 1 तक होना चाहिए. तो इन सारी चीज़ को क्या लिखेंगे, ये चीज़ तो थी m माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, m प्लस n माइनस 1 का क्या फैक्टोरियल. ये आ गया हमारे पास आंसर. क्लियर. एक तो चीज़ ये आ गई हमारे पास. दूसरा क्या है, इसके आपको जो है रिजल्ट्स जरूर याद होने चाहिए, तब भी आप कुछ कर पाओगे. रिजल्ट मैंने तीनों लिखे हुए हैं, फर्स्ट का, सेकंड प्रॉपर्टी का और थर्ड प्रॉपर्टी का. ये तीनों रिजल्ट आपको आने चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है.